Fine. So we were discussing concentration of solution. So first of all, we'll understand what exactly solution is. What is solution? Solution is a homogeneous mixture in which the solute particles are, tell me, uniformly distributed. Solute particles are uniformly distributed. Right? Okay. तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे weight by volume percentage. Weight by volume percentage. Weight by volume percent. This is first method to express the concentration of solution. Solution के concentration को express करने का पहला तरीका है weight by volume percentage. देखो, if solution is suppose x% weight by volume, if solution is suppose x% weight by volume, it means x gram of solute is present in 100 milliliter of solution. Are you getting this? Is it clear? देखो यहाँ पे weight by volume है. What is numerator? Weight. What is denominator? Volume. तुम्हें ध्यान क्या रखना है कि न्यूमरेटर ऑलवेज सॉल्यूट का होगा और डिनोमिनेटर किसका होगा? सॉल्यूशन का होगा. तो हमें सॉल्यूट का वेट और सॉल्यूशन के वॉल्यूम के बीच में रिलेशन ढूंढना है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में. आर यू गेटिंग दिस? सॉल्यूट का वेट और सॉल्यूशन का वॉल्यूम. आर यू गेटिंग दिस? तो if solution is x% weight by volume, if solution is tell me x% weight by volume, if solution is x% weight by volume, then x gram of solute is present in x gram of solute is present in, tell me, 100 milliliter of solution. X gram of solute is present in 100 milliliter of solution. अगर solution x% weight by volume है तो इसका सिंपल सा मतलब क्या होगा? X gram of solute is present in 100 milliliter of solution. Are you getting this? Yes, sir. Yes. मतलब कि 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो वेट होगा, ध्यान से समझो, 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो वेट होगा वही उसका वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज होगा ना. 100 मिलीलीटर में कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है? x ग्राम ऑफ सॉल्यूट है. तो सॉल्यूशन क्या है? x% वेट बाय वॉल्यूम है ना. तो 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना मास प्रेजेंट होगा वही उस सॉल्यूशन का क्या होगा बताओ? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज होगा. ये बात आई समझ? This thing is clear or not clear? Yes, sir. Yes. अभी जैसे मैं कोई एग्जांपल लूं कि इट इज 200 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, 200 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन और उसमें 40 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है. 200 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन है और उसमें 40 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है. तो बताओ 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा? क्या करोगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और इससे डिवाइड करोगे. इट विल बी हाउ मच? इट विल बी 40 into 100 अपॉन हाउ मच? 200. इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा बताओ? दिस विल बी हाउ मच? 20. इसका मतलब क्या हो जाएगा? 10 weight by volume percentage. 10 weight by volume percentage is equal to कितना आ गया? 20 आ गया. 200 मिलीलीटर में 40 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है तो 100 मिलीलीटर में 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है और 100 मिलीलीटर में जितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा वही उसका वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज होगा ना. यस. Yes, What sir. is 40 here? What is 40 here? Weight of solute. What is 200 here? Volume of solution. What is 200? Volume of solution into 100. तो weight by volume percentage क्या मिला? Weight of solute upon volume of solution into 100 मिला ना? Yes, sir. Are you getting this? 40 is weight of solute. 200 is what? Volume of solution into 100. तो weight by volume percentage क्या मिला? Weight of solute upon volume of solution into 100.
ये बात आ गई समझ? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो यहाँ पर देखो क्या होगा, 10 वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन टेल मी volume of solution, weight of solute upon volume of solution into 100. Weight by volume percentage will be equal to weight of solute upon volume of solution into 100. Any problem in understanding? No, sir. यहाँ तक समझ में आया? Is it clear? Yes, sir. Yes. चलो, should I rub it? ये लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Yes. तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट समझ में आया बच्चा? अगर सॉल्यूशन x% वेट बाय वॉल्यूम है, इसका मतलब कि 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है? बोलो। अगर सॉल्यूशन x% वेट बाय वॉल्यूम है तो 100 X ग्राम। मिलीलीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है? X ग्राम। सॉल्यूट प्रेजेंट है ना? ओके, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। 200 milliliter solution. A 200 milliliter solution is 10% weight by volume. Density of the solution. Density of the solution is 1.5 gram per milliliter. What is the weight of the solvent? What is the weight of the solvent? तो solvent का weight क्या होगा? What is the weight of the solvent? Solvent का weight क्या होगा? A 200 milliliter solution is बोलो 10% weight by volume, and density of the solution is how much? 1.5 gram per milliliter. तो क्या पूछा जा रहा है तुमसे? What is the weight of the solvent? Yes, बताओ क्या करना चाहिए? Yes, tell me. बोलो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है बेटा? चलो सॉल्व करते हैं साथ में। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? सॉल्यूशन का 200 वॉल्यूम ml. कितना है? 200 मिलीलीटर, राइट ना? ओके, और वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितना है? 10%. यस, तो यहां से हमें सॉल्यूट का मास मिल जाएगा ना? बोलो, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट क्या सीखा था? सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम इनटू 100, यही सीखा था ना? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ से हमें सॉल्यूट का मास मिल जाएगा ना? Yes, sir. वैसे भी सॉल्यूशन 10% वेट बाय वॉल्यूम है, तो आप ऐसे ही सोचो ना कि 100 मिलीलीटर में सॉल्यूट का वेट 10 ग्राम है, तो 200 मिलीलीटर में सॉल्यूट का वेट कितना होगा? 20 20 ग्राम ग्राम। होगा। यही आएगा ना सॉल्यूट का वेट? Yes, sir. यस। अब सॉल्यूट का वेट 20 ग्राम आ गया और तुम्हें सॉल्वेंट का वेट चाहिए, तो सॉल्यूट का वेट कैसे मिलेगा? सॉल्यूशन के वेट में से सॉल्वेंट का वेट माइनस करोगे तो सॉल्वेंट का वेट मिलेगा ना? सॉल्यूशन के वेट में से सॉल्यूट का वेट माइनस करोगे तो सॉल्वेंट का वेट मिलेगा ना? Yes, sir. यस। और सॉल्यूशन का वेट निकालने के लिए देखो तुम्हें सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है ना? बोलो, सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है। व्हाट इज डेंसिटी? इट इज मास अपॉन वॉल्यूम ना? यस। तो Yes, sir. सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है, इसका मतलब कि मास अपॉन वॉल्यूम हमें सॉल्यूशन का गिवन है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें पता है, तो यहाँ से सॉल्यूशन का मास पता चल सकता है ना? और सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास माइनस कर देंगे तो हमें सॉल्वेंट का मास मिल जाएगा ना?
Yes, sir. यस चलो तो देखते हैं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन. डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन. डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है बताओ. इट इज मास ऑफ सॉल्यूशन. मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन क्या होता है बोलो. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ओके. डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है. 1.5 ग्राम पर मिलीलीटर है. मास ऑफ सॉल्यूशन हमें पता नहीं है. मास ऑफ सॉल्यूशन हमें पता नहीं है, हमें कैलकुलेट करना है. एंड व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. 200 मिलीलीटर. मिलीलीटर मिलीलीटर कैंसिल हो गया. तो व्हाट इज मास ऑफ सॉल्यूशन. टेल मी. Mass of solution is equal to 200 into 1.5 gram. मतलब it is 300 gram ना. Yes. sir. तो solution का mass कितना मिला बेटा. 300 gram मिला. Are you getting this? Yes. Yes, sir. Yes. चलो इसको रब करूं क्या. ये लिख लिया सभी ने. Yes, sir. Yes. तो सॉल्यूशन का मास लिख लिया था ना सभी ने. Yes, sir. तो सॉल्यूशन का मास कितना आ गया. 300 ग्राम आ गया. चलो अब वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या सीखा था आपने बताओ. वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या सीखा था. दिस इज वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन weight of solute upon volume of बोलो solution into 100. यही सीखा था ना. Yes, sir. ये weight by volume percent कितना है 10 है. weight of solute हमें पता नहीं. weight of solute हमें पता नहीं. volume of solution कितना है बताओ. 200 मिलीलीटर है. into 100 हो गया. ये 2 से कैंसिल हो गया. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ. weight of solute कितना हो गया. it is how much 20 gram. weight of solute is how much 20. 20 gram. और solution का weight कितना है 300 ग्राम था ना. 200 gram. यस. चलो रब करें इसको. Yes, sir. देख लो सब लोग. सभी का हो गया. Yes. यस. तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा बताओ. मास ऑफ सॉल्वेंट. मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा टेल मी. इट इज मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस माइनस व्हाट मास ऑफ सॉल्यूट. मतलब 280 gram. यस 300 ग्राम माइनस 20 ग्राम. मतलब ये कितना हो जाएगा 280 ग्राम. अंडरस्टूड. Yes, sir. Yes, sir. यस. चलो तो इस तरह के क्वेश्चंस हो जाएंगे. Yes, sir. वेट बाय वॉल्यूम परसेंट समझ में आ गया आपको. Yes, sir. यस. शुड आई रब इट ऑल. Yes. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं एक बार और. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज वेट बाय वेट परसेंटेज. नेक्स्ट इट इज वेट बाय वेट परसेंटेज. वेट बाय वेट परसेंटेज. वेट बाय वेट परसेंटेज है तो न्यूमरेटर क्या है बेटा वेट और डिनोमिनेटर भी क्या है वेट. मैंने आपको क्या बोला था न्यूमरेटर किसको कंसीडर करना सॉल्यूट को और डिनोमिनेटर किसको कंसीडर करना सॉल्यूशन को. तो बताओ यहाँ पे किसके किसके बीच में रिलेशन है. Weight of solute upon weight weight of of solute and solution. weight of solution के बीच में रिलेशन है. सॉल्यूट का वेट और सॉल्यूशन के वेट के बीच में रिलेशन है. ऐसा ही है ना. Yes, sir. यस. तो अगर सॉल्यूशन x% वेट बाय वेट है. if solution is x% weight by weight, it means x gram of solute
It means X gram of solute is present in, tell me, 100 gram of solution. X gram of solute is present in 100 gram of solution. आई बात समझ? अगर solution X% weight by weight है, it means what? It means X gram of solute is present in 100 gram of solution. मतलब कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा यही उसका क्या होगा, वेट बाय वेट परसेंटेज होगा. आई बात समझ? 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा यही उसका क्या होगा, बोलो, वेट बाय वेट परसेंटेज होगा. ये बात आई समझ? Yes, sir. यस. अभी जैसे एग्जांपल के लिए मैं ऐसे बोलूं कि 300 ग्राम सॉल्यूशन है, 300 ग्राम सॉल्यूशन है और इसमें 60 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है. 300 ग्राम सॉल्यूशन है और उसमें 60 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है. तो जल्दी से बताओ 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है? इट इज 60 अपॉन 300 इनटू 100. यही करोगे ना, इसको इससे मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड, राइट? बोलो. Yes, sir. यस. तो ये हमें कितना मिलेगा बताओ? इट विल बी 20 ग्राम ना. यस. Yes, sir. तो इसका मतलब क्या हो गया, वेट बाय वेट परसेंटेज कितना हो गया, 20 हो गया ना. 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है. 100 ग्राम सॉल्यूशन में x ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है. अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन में x ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है तो सॉल्यूशन इज x% वेट बाय वेट. तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है तो सॉल्यूशन इज 20% वेट बाय वेट ना. Yes, sir. Yes, sir. एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? तो No, यहाँ sir. पर देखो व्हाट इज 60 है, क्या 60 है यहाँ, बोलो 60 क्या है यहाँ पर? दिस इज वेट ऑफ सॉल्यूट. What is 300 here? This is weight of solution, right? तो weight by weight percentage क्या हो गया? Weight of solute upon weight of solution into 100 हो गया ना? Yes, sir. Yes. Yes. तो चलो इसको रब करते हैं. Weight by weight percentage क्या हो जाएगा? What is weight by weight percentage? This is weight of solute upon weight of solution into 100. तो weight by weight percentage. वेट बाय वेट परसेंटेज हमें क्या मिलेगा बताओ? दिस इज वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन. वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. दिस विल बी व्हाट? वेट बाय वेट परसेंटेज. आई बात समझ? वेट बाय वेट परसेंट ऑफ सॉल्यूशन विल बी वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. ये बात आई समझ? Yes, sir. Any problem in understanding? No, sir. चलो, should I rub it? No, sir. लिख लो. तो if solution is x% weight by weight, it means what? It means x gram of solute is present in 100 gram of solution. और यहाँ से हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया? Weight by weight percent will be equal to weight of solute upon weight of solution into 100. आ गई बात समझ? Yes, sir. Yes. Sure. A 200 gram solution. A 200 gram solution is 5% weight by weight. What is the weight of the solvent? What is the weight of the solvent? A 200 gram solution is 5% weight by weight. What is the weight of the solvent? जल्दी से बताओ. Yes, yes, yes. कितना? 10 grams. 10 ग्राम सॉल्वेंट का वेट.
190. सर 10 ग्राम सॉल्यूट का है। सॉल्वेंट 190. सॉल्वेंट का वेट 190 ग्राम है ना? यस, सॉल्वेंट का वेट कितना होगा? Yes, sir. 190 ग्राम। वेट बाय वेट परसेंटेज क्या सीखा? आप ऐसे वर्बली भी सॉल्व कर सकते हो। सॉल्यूशन इज 5% वेट बाय वेट, मतलब कि सॉल्यूशन का अगर मैं 100 ग्राम लूंगा तो उसमें सॉल्यूट कितना प्रेजेंट होगा? 5 ग्राम। तो सॉल्यूशन का 200 ग्राम लूंगा तो उसमें सॉल्यूट कितना प्रेजेंट होगा? 10 ग्राम। तो 200 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का वेट 10 ग्राम है, तो 200 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का वेट कितना है? 200 माइनस 10 ना, दैट इज 190 ग्राम। आई बात समझ? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. तो चलो देखो इधर, वेट बाय वेट परसेंटेज क्या सीखा था हम लोगों ने? वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 सीखा था। वेट बाय वेट परसेंटेज कितना है? 5 है। वेट ऑफ सॉल्यूट हमें पता नहीं है, और वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 200 है इनटू 100, ये 2 से गया। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा बताओ? वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 10 ग्राम हो जाएगा। हो जाएगा ना? ओके, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा जल्दी बताओ? इट विल बी 200 माइनस 10 ग्राम मींस इट इज 190 ग्राम हो जाएगा। आई बात समझ? इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. यस। चलो आगे बढ़े। शुड आई रब इट? Yes, sir. यस सर। समझ में आ रहा है सब कुछ? मैं फास्ट जा रहा हूँ, स्लो जा रहा हूँ, और ओके? सर ओके। ओके। लिख लिया ना सभी ने? Yes, sir. अब नेक्स्ट बच गया Yes, sir. वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट क्या बच गया बताओ? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज बताओ। न्यूमरेटर क्या है यहाँ पे? सॉल्यूट। डिनोमिनेटर भी क्या है यहाँ पे? वॉल्यूम। सर वॉल्यूम। न्यूमरेटर किसको रिप्रेजेंट करता था? क्या सिखाया था मैंने? सर सॉल्यूट। Solute. डिनोमिनेटर किसको रिप्रेजेंट करता है? वॉल्यूम को। Solution. डिनोमिनेटर किसको? सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। तो बताओ यहाँ पे किसके किसके बीच रिलेशन है? सॉल्यूट का वॉल्यूम और सॉल्यूशन के वॉल्यूम के बीच में रिलेशन है ना? Yes, sir. Yes, sir. यस। तो क्या बोलेंगे बताओ? इफ सॉल्यूशन इज x% volume by volume, if solution is x% volume by volume, then x milliliter of solution, then x milliliter of solute is present in 100 milliliter of solution. आई बात समझ? If solution is x% weight by volume, then x milliliter of solute is present in 100 milliliter of solution. आई बात समझ? Is it clear? Yes. आपने Yes, weight sir. by weight percentage क्या डिफाइन किया था? weight of solute upon weight of solution into 100 किया था, है ना? तो वॉल्यूम Yes, बाय sir. वॉल्यूम परसेंटेज क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 हो जाएगा ना? Yes, sir. यस। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या हो जाएगा बताओ? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इट विल बी व्हाट? इट विल बी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये बात आ गई समझ? Yes, Yes, sir. sir. यस। तो आपको ये तीनों पैरामीटर समझ में आ गया? Yes, sir.
वेट Yes, sir. बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये तीनों पैरामीटर समझ में आ गए, ये तीनों कंसंट्रेशन टर्म समझ में आ गया। Yes, sir. यस Yes, sir. चलो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म दैट वी हैव टू डिस्कस इज मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म क्या है बताओ? इट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, और इसको हम लोग कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे आगे। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे बोलो? कैपिटल एक्स से। देखो अगर कोई मिक्सचर है, अगर कोई मिक्सचर है ना, मिक्सचर के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, सपोज उसका एक कंपोनेंट ए है, उसका दूसरा कंपोनेंट बी, तीसरा कंपोनेंट सी है, कोई मिक्सचर है उसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, तो किसी भी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, ध्यान से समझो, किसी भी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन रेशियो होता है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? रेशियो होता है। किसी भी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन रेशियो होता है उसका मोल और टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द मिक्सचर का। आर यू गेटिंग दिस? ये समझ में आया? जैसे मैं यहाँ पर कोई मिक्सचर ले लूं, इसका मोल, इसमें ए है, बी है और ये सी है। इस मिक्सचर में देखो तीन कंपोनेंट्स हैं, ए, बी और सी। सपोज ए का मोल है Na, बी का मोल है Nb और C का मोल क्या है? Nc है। A का मोल Na, B का मोल Nb और C का मोल Nc है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द मिक्सचर is the ratio of its mole with total number of moles. Ratio of its mole with, बोलो, total number of moles. अभी लिखना मत, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या हो जाएगा? Ratio of its mole with total number of moles. What is mole of A? Mole fraction of A will be what? Mole of A upon what? Total number, upon total number of moles. Mole of A upon total number of moles. Mole of A क्या हो गया? Na हो गया, और total number of mole क्या हो गया बोलो? Na plus Nb plus Nc हो गया। इसको हम लोग Na upon N total लिखते हैं। आई बात समझ? Yes? Mole fraction of any component present in the mixture is the ratio of its mole with total number of moles. Total number of moles का मतलब mole of A plus mole of B plus mole of C. तो mole of A upon mole of A plus mole of B plus mole of C. Are you getting this? Mole of A plus mole of B plus mole of C को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं? N total लिख सकते हैं, total number of moles. ये समझा सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, चलो sir. देखो, पहले लिख लो उसके बाद ये लिखना। देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द मिक्सचर, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द मिक्सचर is the ratio of mole fraction of any component present in the mixture is the ratio of its mole, is the ratio of its mole with, बोलो, total number of moles. Mole fraction of any component present in the mixture is the ratio of its mole with total number of moles. Understood? Yes, sir. Yes. तो Yes, sir. मुझे बताओ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या लिख सकता हूं? Yes, it is what? Mole of B upon N total. हो जाएगा ना? Yes, sir. मोल फ्रैक्शन ऑफ C क्या लिख सकता हूं बताओ? It is mole of C upon N total. ऐसे ही हो जाएगा ना? Yes. Yes, बहुत sir. आसान सा चीज है यार। मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का क्या होगा? रेशियो होगा, उसका मोल और टोटल नंबर ऑफ मोल्स का। सिंपल सी बात है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मान लो
A का मोल 1 है, B का मोल 2 है, A का मोल 1 है, B का मोल 2 है ना, और C का मोल 3 है। A का मोल 1, B का मोल 2 और C का मोल 3। तो बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या होगा? 1/6. 1/6। 1 upon 1 plus 2 plus 3 मतलब 1/6। B का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? 1/3. 1/3 मतलब 2/6 है ना। यस। और C का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? 1/2. यस, इसका 3 मोल था ना, तो इट विल बी 3/6 मतलब कितना? 1/2। आई बात समझ? एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? No, sir. No, sir. No, sir. तो मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट होगा क्या? नहीं होगा, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू मोल्स ना। देखो न्यूमरेटर में भी मोल है, डिनोमिनेटर में भी टोटल नंबर ऑफ मोल है, तो मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट होगा क्या? No, sir. नो, नहीं होगा। तो लिखो मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस। मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होगा, मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस। चलो इसको रब करें अब। यस। Yes, sir. अब मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ इट्स मोल विथ टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो न्यूमरेटर हमेशा क्या होगा? लेस होगा, और डिनोमिनेटर हमेशा हाई होगा ना। जैसे मैंने A का 1 मोल, B का 2 मोल, C का 3 मोल ले लिया और मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो हमें 1 upon 1 plus 2 plus 3 1 upon 6 मिला। तो न्यूमरेटर हमेशा क्या होगा? लेस होगा, और डिनोमिनेटर ऑलवेज क्या होगा? हाई होगा ना। Yes, sir. Yes, sir. मतलब कि सॉल्यूशन के किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ऑलवेज क्या होगा? लेस देन 1 होगा। सॉल्यूशन के किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ऑलवेज क्या होगा? So less than 1. लेस देन 1 होगा। और अगर किसी का मोल फ्रैक्शन 1 आ रहा है, इसका मतलब कि सॉल्यूशन में कोई दूसरा कंपोनेंट प्रेजेंट ही नहीं है, वो अपने प्योरेस्ट फॉर्म में है। उसका मतलब यही होगा ना। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ A 1 आ गया, इसका मतलब कि यहाँ पर B का मोल 0 है, C का मोल 0 है, A अकेला प्रेजेंट है यहाँ पे। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. Yes, sir. तो चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस होगा। लिखो मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस। सेकंड पॉइंट लिखो, मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस। तीसरा पॉइंट लिखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन द मिक्सचर, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन द मिक्सचर इज ऑलवेज लेस देन 1। मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द मिक्सचर इज ऑलवेज, बोलो, is always less than 1. किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मिक्सचर में क्या होगा? ऑलवेज लेस देन 1 होगा। आई बात समझ? इज इट Yes, sir. क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या मिला था बताओ? मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ C कर दो। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या मिला था? A का मोल अपॉन टोटल मोल। मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या मिला था बताओ? B का मोल अपॉन टोटल मोल। और मोल फ्रैक्शन ऑफ C क्या मिला था? C का मोल अपॉन टोटल मोल। यही था ना? यस। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ C, हमें यही मिलेगा ना। Yes, sir. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो गया बेटा? n टोटल हो गया ना। Yes, sir. और न्यूमरेटर क्या हो गया? Na प्लस nb प्लस nc हो गया। मतलब कि दिस इज n टोटल अपॉन n टोटल हो गया। मतलब ये कितना हो गया? 1 हो गया ना। यस। Yes, Yes, sir. sir. इसका मतलब क्या हुआ कि सम टोटल ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द मिक्सचर इज इक्वल टू 1। मिक्सचर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सभी के मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा? 1 हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. यस। चलो लिख लो पहले इसको।
डन? No, sir. डन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. ये समझा सभी को? अब Yes, स्टेटमेंट sir. लिख लो, स्टेटमेंट लिखो, does sum total of mole fractions of all the components present in the mixture, thus sum total of mole fractions of all the components present in the mixture is equal to 1. The sum total of mole fractions of all the components present in the mixture is equal to 1. मिक्सचर के जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उन सभी के मोल फ्रैक्शन का सम हमें क्या मिलेगा? 1 के बराबर मिलेगा। ये बात आ गई समझ? Yes, sir. यस, चलो क्वेश्चन 50 ग्राम aqueous solution of C2H5OH contains 23 gram of C2H5OH. Calculate mole fraction of C2H5OH and mole fraction of H2O. Aqueous solution का मतलब क्या होता है बेटा? अगर कहीं पर भी aqueous solution mentioned है, इसका मतलब होता है solvent is water. इसका मतलब क्या होता है बताओ? Solvent is, बोलो, Water. water. ठीक है, चलो तो 50 ग्राम aqueous solution of C2H5OH contains 23 gram of C2H5OH. Calculate mole fraction of C2H5OH and mole fraction of H2O. जल्दी से बताओ प्रोसीड कैसे करोगे? How will you proceed? Yes, बोलो जल्दी। बेटा मोल फ्रैक्शन हमें किसी भी कंपोनेंट का निकालना हो, हमें सॉल्यूशन में प्रेजेंट हर एक कंपोनेंट का मोल तो निकालना ही पड़ेगा ना? Yes, sir. हमें सॉल्यूशन में प्रेजेंट हर एक कंपोनेंट का मोल तो निकालना ही पड़ेगा। इस सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट्स हैं? दो, एक C2H5OH जो कि सॉल्यूट है और दूसरा क्या? H2O जो कि सॉल्वेंट है। यही है ना? बोलो। Yes, sir. तो हमें दोनों का मोल कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक बार हम दोनों का मोल कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें मोल फ्रैक्शन भी आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो बताओ वेट ऑफ C2H5OH कितना दिया हुआ है? वेट ऑफ C2H5OH इज 23 ग्राम। तो मोल ऑफ C2H5OH क्या मिलेगा? 23/46 मतलब 0.5 मिलेगा। इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा? 24 + 5 29, 29 + 16 45, 45 + 1 46। तो इसका मोल क्या हो गया? मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास 23/46 0.5। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No, No, sir. sir. No, sir. अब अगर एथेनॉल का मास C2H5OH का मास अगर 23 ग्राम है तो वेट ऑफ वाटर क्या होगा बताओ? वेट ऑफ वाटर क्या होगा? 50 - 23 हो जाएगा ना? यस, 50 ग्राम aqueous solution of C2H5OH contains 23 ग्राम of ethanol. ये एथेनॉल है C2H5OH। 50 ग्राम में 23 ग्राम एथेनॉल है तो वाटर कितना है?
27 gram. 27 ग्राम। वाटर कितना प्रेजेंट हो गया? 27 ग्राम। तो वेट ऑफ वाटर 27 ग्राम। तो मोल ऑफ वाटर कितना होगा? It will be 27 upon 18 ना? Yes? Yes, sir. Yes. मतलब कितना 1.5 हो जाएगा ना ये? 18 into 1.5 it will be how much? 27. Yes, sir. Yes. तो बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH क्या होगा? C2H5OH का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? जल्दी बताओ। It will be mole of C2H5OH upon n total लिख देता हूँ। upon n total मतलब कि this will be 0.5 upon 0.5 plus 1.5. Isn't it? मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH, C2H5OH का मोल फ्रैक्शन अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल का मतलब एथेनॉल का मोल प्लस वाटर का मोल दोनों मिलाकर ना। Yes, sir. यस। तो ये क्या हो गया बेटा? दिस इज 0.5 अपॉन 2 हो गया। तो व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन? 1/4 हो जाएगा। आई बात समझ? Yes, sir. यस। तो मुझे जल्दी से बताओ वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 3/4. 3/4। बहुत बढ़िया। क्योंकि इन दोनों का मोल फ्रैक्शन मिलके कितना होना चाहिए? 1। 1. बताया था ना, मिक्सचर के सभी कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन मिलके कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो अगर इसका मोल फ्रैक्शन 1/4 है, राइट ना, तो 1/4 प्लस इसका मोल फ्रैक्शन मिलके कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O क्या हो जाएगा? 1 - 1/4 हो जाएगा, मतलब 3/4 हो जाएगा, है ना? Yes, sir. आया समझ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का? आज का क्लास अच्छे से समझा आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. यस? Yes, sir. Yes, sir.